নমস্কাৰ মেৰি মাল্টিমিডিয়া ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ এই মেৰি মাল্টিমিডিয়া চেনেলটো 50,000 ঘৰ পাৰ কৰিলে। আজি এই কৰোনাৰ সময়ত সকলোকে সজাগ সতৰ্ক থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চেনিটাইজ কৰিব, সদায় মাস্ক পিন্ধিব। আজি বেলেগ টাইপৰ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই, আমি গান আৰু এণ্টাৰটেইনে কৰি থাকোঁ। কাৰণ এইটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য আছে, কাৰণ একজনে যদি বিপদত পৰে আনজনক কোৱাৰ সজাগ কৰাৰ দায়িত্ব, আৰু সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকুৱা ভিডিঅ' আগতেও বনোৱা নাই, কৈছোঁ ভাল নহ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে শুনিব শেষলৈকে, আপোনাৰ কামত আহিব। কাৰণ আজিৰ এই দিনত কোনে কাক কেতিয়া ঠকাই দিয়ে আমি গমেই নাপাব। আজি ঠিক এনেকুৱা ঘটনা মোৰ লগত ঘটি গৈছিল, কিন্তু মই সতৰ্ক থকাৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কথাটো এনেকুৱা, আজি প্ৰায় 2টামান বজাত মোক অচিনাকি নাম্বাৰৰ ফোন আহে। এইটো নাম্বাৰটো চাওক। এই নাম্বাৰৰ পৰা ফোন আহি ক'লে, নাম্বাৰটো ট্ৰু কলাৰত আহিলে এনেকুৱাকৈ, জিঅ' KYC অফিচাৰ, ভেৰিফিকেশ্যন অফিচাৰ। তেওঁ ক'লে যে আপুনি KYC ভেৰিফিকেশ্যন কৰক, নহ'লে আপোনাৰ জিঅ' নম্বৰটো বন্ধ হৈ যাব। মই ক'লোঁ যে উইদাউট ইনফৰমেশ্যন মোৰ জিঅ' কেনেকৈ বন্ধ হ'ব পাৰে? কয় নাই, আপোনাক মেছেজ কৰিছোঁ, আপুনি কৰা নাই, আজি কৰিব লাগিব, লাষ্ট ডেট। হয় নেকি? মইতো তেনেকুৱা মেছেজ পোৱা নাই। তেওঁ বহুত জোৰ দিলে, আজি বন্ধ হ'বই। এনেকুৱাতো মনে মনে ভাবিছোঁ, এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে। এইটো নিশ্চয় ফ্ৰড হ'ব। ঠিক মই লাহে লাহে দীঘল কৰি গ'লোঁ কথা বতৰাবিলাক, যে এই মানুহটো যায় ক'ত, কি কয় সেইটো শুনো। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানুহজনে ক'লে যে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত যাওক, টিম ভিউৱাৰ্ছ বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, সেইটো ইউজ কৰিব দিলে। মোক কল ৰেকৰ্ড আছে, আপোনালোকক শুনাম। তাৰ আগতে কথাখিনি এইকাৰণে কৈ লৈছোঁ, তেতিয়া বুজি পাব। কল ৰেকৰ্ডটো প্ৰথমতে মই কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া মই মাইণ্ডত ওলালে যে এইটো ফ্ৰড, লগালগ মই কল ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো টিম ভিউৱাৰ্ছৰ কথাখিনি কওঁ। টিম ভিউৱাৰ্ছটো এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে হয়তো কিছুমান জানে, যে এই এপ্লিকেশ্যনেদি এজনৰ মোবাইল আনজনে অপাৰেটিং কৰিব পাৰে। আপুনি ভাবক, আপোনাৰ মোবাইল ফোন যদি বেলেগে এই কলকাতা দিল্লীৰ পৰা অপাৰেটিং কৰে, আপোনাৰ জিঅ' গুগল পে' নাইবা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডাটাসমূহ কি হ'ব পাৰে? গতিকে সতৰ্ক হ'বৰ সময় হৈছে। এবাৰ কল ৰেকৰ্ডটো শুনক। প্ৰথমটোত তেওঁকহে মই দীঘল কৰি আছিলোঁ যে তেওঁ কি কৰে। ছেকেণ্ডটোত কিন্তু মই দুখিত, মই গালি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তেওঁ কিছুমান অংগী ভংগী কৰি আছিল, সেইটো শুনাম মই। হয়তো বিপ লগাই দিছোঁ, মই অসমীয়া গালি কেইটামান দি দিলোঁ। কৈছোঁ সদায় সতৰ্ক থাকক, কোনে কেতিয়া কেনেকৈ লুটি ল'ব আপুনি গমেই নাপাব। मैं असम से दिसपुर से बात कर रहा हूँ। गुवाहाटी के हम गुवाहाटी जानते हैं, एमजी रोड। तो असम से बात कर रहे तो एसएमएस में बोलिए। सर मेरा बात है कि असम में नहीं बोला था सर, क्योंकि हमारे कस्टमर होता है ना, हमेशा हम वो एक ही शब्द यूज करते हैं, तो हम हिंदी बात करती है जी। तो अगर आपको एसएमएस नॉलेज नहीं है तो आपको गुवाहाटी किसने ज्वाइन किया है? हाँ तो सर जिससे हिंदी से को नहीं आता ना, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ना कस्टमर है जिसको असम आता था, उसके पास कॉल ट्रांसफर कर दिया था, फिर वो असम का सुना देते हैं। अच्छा अभी बताइए, मैं एक्चुअली कि वो प्ले स्टोर में क्या करना पड़ेगा मेरे को? जी वहाँ पे जियो क्विक सपोर्ट लिख के सर्च करेंगे सर। जियो क्विक सपोर्ट? या सर जियो क्विक सपोर्ट लिख के सर्च कीजिए। अच्छा, करने से सर्च करने के बाद सर वहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, KYC एप्लीकेशन, जिसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक जियो ऐप होगा ना हमारा जियो का ऐप। हाँ माई जियो। हाँ
हाँ सर, उसके माध्यम से उस ऐप से आपको वेरीफाई अपडेट हो पाएगा सर। वहाँ से आपको लाइन पे आते प्रोसेस करेंगे तो आपको केवाईसी देन यूटीआर नंबर एक्टिवेट का 8 अंक का यूटीआर नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, केवाईसी अपडेट करने से हो जाएगा। हाँ, 8 अंक का यूटीआर नंबर यहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। जब आप लाइन में पड़ते प्रोसेस करेंगे तभी आपको मैसेज मिलेगा, जिसके माध्यम से आपका सिम वेरीफाई अपडेट हो पाएगा सर, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मुझे तो अभी तक मैसेज कुछ भी दिन नहीं दिया है। मैसेज आपको आया होगा सर, बट आपने चेक नहीं किया, जिस कारण से भी आपको डेट में कॉल किया गया कि सर आपका टुडे इज योर लास्ट डेट एंड रिकवरी डे योर डॉक्यूमेंट वेरीफाई पेंडिंग। जियो केवाईसी बोल के कोई मैसेज नहीं है मेरे पास। नहीं, उसके लिए वही बोल रहे सर, अगर मैसेज आपको आया हुआ है कि आपने डिलीट कर दिया, बट सर आपको आज से 10 या 15 दिन पहले मैसेज मिला हो, ठीक है, 10 या 15 दिन पहले। अच्छा जी ठीक है सर, अभी कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया था कि सर आपका केवाईसी सस्पेंड होने वाली, तो अब 10-15 दिन पहले आपका रिकवरी करवाना है, तो आपको मैसेज 10-15 दिन पहले मैसेज मिला होगा सर, बट आपने चेक नहीं किया, उसके समझ चाहते हैं। आज की डेट आपका लास्ट डेट है, जिस कारण से आपको कॉल किया गया है। अच्छा, जी, तो क्या करेंगे सर, सिम वेरीफाई अपडेट करना कि सिम लाइफ टाइम सस्पेंड कर देनी सर आपको? देखते हैं क्या करते हैं। फिर बाद में फिर नहीं हो पाएगा सर आपका। अभी 2 डेज बाद मैंने बोला ना कि अभी आपका लास्ट समय चल रहा, अभी नहीं करते तो आपका सिम जो सर यहाँ से काम करना बंद कर देगा, डॉक्यूमेंट्स आपका अपडेट नहीं हो पाएगा। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसमें? डॉक्यूमेंट्स आपका कुछ अभी लगेगा नहीं सर, जिसके डॉक्यूमेंट्स आपका सारा कुछ दिया गया है, उसको सिर्फ एक बार माई जियो ऐप से अपडेट करना है बस सर। माई जियो ऐप से? हाँ, और पहले आपको केवाईसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसके माध्यम से आपका फिर माई जियो अपना सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद आपको यहाँ से केवाईसी यूटीआर नंबर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे यूटीआर नंबर आप डालेंगे, फिर करेंगे सर, उसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आएगा ओके ओके करेंगे तो आपको फिर सक्सेसफुल का मैसेज आया कि योर डॉक्यूमेंट इज वेरीफाई पेंडिंग। जो हुआ था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो पाया सर, अपडेट हो गया है। अच्छा अच्छा, जी, पहले अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लो सर। तो मैं तो प्ले स्टोर ओपन किया। वहाँ पे जियो क्विक सपोर्ट लिख के सर्च कीजिए। जियो क्विक QUICK क्विक सपोर्ट, हाँ सर्च कीजिए। अच्छा, क्या? सर्च करने के बाद कौन सा एप्लीकेशन है आपका? माई जियो? नहीं सर, माई जियो में सर्च नहीं करना है, वहाँ पे देखिए जियो क्विक सपोर्ट लिख के सर्च किया प्ले स्टोर पे। अच्छा, सर्च किया। वहाँ पे देखिए टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट आ रहा है आपका? हाँ हाँ, उसको डाउनलोड करो सर, इंस्टॉल कीजिए उसको। अच्छा, इंस्टॉल पे लगा दीजिए। कर दिया। इंस्टॉल हो रहा है सर, अभी आपका पेंडिंग लिखा हुआ कि परसेंट शो कर रहा है सर डाउनलोडिंग पे? एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट। क्या आ रहा है? एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। हाँ, नीचे में एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट का मेमोरी शायद फुल हो गया, उसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, कर दिया। अभी लोडिंग शुरू हुआ आपका? हाँ जी, पेंडिंग बता रहा था कि परसेंट शो कर दिया, 1%, 2%, 3% परसेंट दिख रहा है कि पेंडिंग लिखा है वहाँ पे? परसेंट दिख रहा है। कितना परसेंट हुआ कि? 15%। 16% जी। हाँ, ओपन बोल रहा है। हाँ, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखो सर, वहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू आ रहा है KLMS करके, उसको एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए। कर दिया। उसका तीर का निशान आ रहा है, तीर का निशान पे क्लिक करेंगे। कहाँ? नीचे में देखो ना लिखा है, नीचे में तीर का निशान है, लकीर एक, हाँ, उस पर टच करके आगे बढ़ाइए इसको। बढ़ा दिया। फिर से बढ़ाइए। बढ़ा दिया। अभी क्या आ रहा था, फिर से बढ़ाने से बोल रहा है, एक बार फिर डन बताया, डन कीजिए। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। तीर आ रहा है, फिर से तीर। हाँ, अभी क्या आ रहा था वहाँ पे, अभी क्या आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। डन वाला लिखा है, डन। घूम रहा है, घूम रहा है। जी जी जी। हाँ, डन डन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डन कीजिए। हाँ, डन कर दिया। उसके बाद देखो सर, वहाँ पे सेटिंग बता रहा है क्या, सेटिंग? अच्छा, सेटिंग बता रहा है, सेटिंग ऑन कर लो सर, सेटिंग ऑन कीजिए। कर दिया। तो उसका सेंड माई आईडी योर आईडी लिखा है सर, नीचे में देखो सेंड माई आईडी योर आईडी, सेटिंग से एक बार बैक आ जाइए। उसके बाद हाँ, सेंड माई आईडी के उसके ऊपर में योर आईडी लिखा है, योर आईडी जो आपका नंबर होगा 167 करके। हाँ हाँ, नंबर कंफर्म कराएंगे सर, वो कंप्लेन आईडी नंबर होता है हमारा, पे नोट किया तो नंबर बताएंगे। हाँ, सेंड माई, इसमें क्लिक करो क्या? नहीं, क्लिक नहीं करना सर, ऊपर में जो नंबर दिख रहा है ना, हाँ, हाँ, वो नंबर कंफर्म कराएंगे। नंबर क्या आईडी नंबर आ रहा है आपका? हाँ, आ रहा है। जी, आईडी नंबर कंफर्म कराएंगे सर।
और नंबर है 9 नंबर का है ना? हाँ 9 नंबर का होगा सर उस पे। अच्छा 83 क्या सर 183 83 83 86 86 87 87 16 16 5। नंबर तो गलत बता रहे सर, बोले हो गया। हो गया? नंबर तो गलत बता रहे सर ये आप। अरे सर बेवकूफ बना रहे क्या आप? बेवकूफ तो आप बना रहे हैं। क्या है? हाँ? अरे निरुला कहाँ से लौटने आया है? काम धंधा नहीं है क्या? তো শুনিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ, কেনেকুৱা টাইপৰ ফ্ৰড। আপোনাক এনেকুৱাকে ফচাই দিব নহয়, আপোনাৰ টেনশ্যন হৈ যাব যে আপোনাৰ এই লকডাউনৰ সময়ত আপোনাৰ চিমখনো যদি বন্ধ হৈ যায়, আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা এটা হ'ব পাৰে। সেইটো মাথাত অহাৰ লগে লগে বাকী যে চব তেওঁ লৈ যাব আপুনি গমেই নাপায়। গতিকে নাৰ্ভাছ নহ'ব, সাহস ৰাখক। এই কৰোণাৰ দিন, এই বিপদৰ দিন এদিন যাব। আমি আপুনি সকলোৱে মিলি আকৌ ওলাই আহিম, আকৌ একেলগে চলা ফুৰা কৰিম। এতিয়াৰ কাৰণে সজাগ থাকিব, সদায় মাস্ক পিন্ধক, হেণ্ড চেনিটাইজ কৰক আৰু পাৰিলে বাহিৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰক। থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ। মেৰি মাল্টিমিডিয়া আপোনালোকে যদি ভাল পায় আৰু বিশেষকৈ এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল পায়, আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, কামত আহিব তেওঁৰো। থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ, জয় আই অসম।